اور آپ کو براہ راست لیے چلیں گے اسلام آباد، جہاں پر الیکشن کمیشن کے 2 نئے ممبران کی حلف برداری تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ ان سے حلف لے رہے ہیں، جبکہ رکن پنجاب بابر حسن بھروانہ اور خیبر پختونخوا کے رکن جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ اپنے عہدے کا حلف اٹھا رہے ہیں۔ I, Babar Hassan Bharwana, do solemnly swear that as member Election Commission of Pakistan, do solemnly swear that as member Election Commission of Pakistan, I will discharge my duties and perform my functions I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law. honestly to the best of my ability, faithfully in accordance with the Constitution of Islamic Republic of Pakistan and the law, And without fear or favor, affection or ill will. and without fear or favor, affection or ill will, And that I will not allow my personal interest and that I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. to influence my official conduct or my official decisions. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Amen. Ameen. Thank you. اسی پہ سائن کر سائن کہاں کر سائن بھی تو اسلام آباد میں حلف برداری کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ الیکشن کمیشن کے 2 نئے ممبران نے حلف اٹھا لیا۔ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ نے ان سے حلف لیا اور رکن پنجاب بابر حسن بھروانہ اور خیبر پختونخوا کے رکن جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ مناظر اب اپنے ٹیلی ویژن سکرینز پر دیکھ رہے ہیں۔ براہ راست مناظر اسلام آباد الیکشن کمیشن کے حلف برداری کی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا اور چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان سکندر سلطان راجہ نے 2 نئے ممبران سے حلف لیا۔ رکن پنجاب بابر حسن بھروانہ اور خیبر پختونخوا کے رکن جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ نے اپنے عہدوں کا حلف اٹھا لیا ہے۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ترکی کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا انقرہ میں ترکی پاکستان بزنس فورم سے خطاب، کہا ترکی نے صدر اردوان کی قیادت میں زبردست ترقی کی۔ زلزلہ ہو یا کوئی اور مشکل، ترکی نے ہمیشہ پاکستان کی مدد کی۔ پاکستان اور ترکی کو سرمایہ کاری کے لیے رکاوٹیں دور کر دینا چاہیے۔ This is friendship. This is everlasting relationship. But then, unfortunately, this has not transformed into our trade relations. It does not reflect, our trade does not reflect our brotherhood, our friendship, our deep-rooted relations. And I know President Tayyip Erdogan is very keen and eager, and so all these great Turkish businessmen and Pakistani businessmen are all very eager to promote our investments, promote our trade and our commerce. But let us then be very practical. Business is business. Well, we are brothers, of course, but then business has its own protocols, and we have to do business according to those protocols. Therefore, let us break these barriers. Let us remove all those hurdles to promote our investment and our trade between the two countries. وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی دورہ ترکی۔ شہباز شریف ترک صدر رجب طیب اردوان سمیت دیگر ترک قیادت سے اہم ملاقاتیں کریں گے۔
वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की, अहम मुलाकातें और मुआहदे होंगे। तुर्की के दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और रजब तैयब एर्दोगान के दरमियान अहम मुलाकात होगी, जिसके बाद वफूद की सतह पर दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई और आलमी अमन के हवाले से तफसीली बातचीत होगी। मिसाली ताल्लुकात में अहम संग मील पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और तुर्क सदर यादगारी निशान की निकाब कुशाई करेंगे। इस मौका पर तुर्की के खारिजा, तिजारत और सेहत के वज़रा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्क ताजरों और सरमायाकारों से भी मुलाकात करेंगे। दौरे में पाकिस्तान में सरमायाकारी करने वाली कंपनीज के सरबराहान भी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की, पाक तुर्की और रिवायती बाएतमाद दोस्ती और दो तरफा ताल्लुकात की तजदीद के सिलसिले की कड़ी है। इससे दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, तालीम, सेहत, सकाफत, इलाकाई राब्तों और आवाम के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में मदद मिलेगी। इस साल पाकिस्तान और तुर्की सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह भी मना रहे हैं। इससे कबल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की पहुंचे, जहां अंकारा एयरपोर्ट पर उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अंकारा एयरपोर्ट पहुंचे तो उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म को तुर्क मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तुर्की की आला सियासी क़यादत से मुलाकातें करेंगे, जबकि दौरे के दौरान पाकिस्तान और तुर्की के माबैन मुतअद्दिद मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वफ़ाक़ी वज़रा क़ाद आसिफ, मरियम औरंगज़ेब, चौधरी सालिक हुसैन, मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और फ़हद हुसैन भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। तुर्की के दौरे पर मौजूद वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो के एजाज़ में तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इशाइया दिया गया। इशाइये के बाद बिलावल भुट्टो और तुर्क वज़ीर ख़ारजा मेलूत चावुशओगलू के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के माबैन ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। महंगाई के सताए गरीब आवाम पर महंगाई का एक और बम गिरा दिया गया। मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल महंगा कर दिया गया। 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपये और ऑयल की कीमत में 213 रुपये तक इजाफा किया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी की फ़ी किलो कीमत 555 रुपये तक पहुँच गई है। भर में महंगाई का तूफान, घी और कुकिंग ऑयल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में कई गुना इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 किलो घी की कीमत में 208 रुपए तक इजाफा किया गया है, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी की फी किलो कीमत 555 रुपए तक पहुँच चुकी है। मुख्तलिफ ब्रांड्स के कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत में 213 रुपए तक इजाफा किया गया है, जिसके बाद यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल की फी लीटर कीमत 605 रुपए तक पहुंच गई है। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन की जानिब से नोटिफिकेशन के मुताबिक कुकिंग ऑयल और घी की नई कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। पेट्रोल पंप के बाद आवाम के लिए 11,000 वोल्टेज का जोरदार झटका। बिजली की कीमतों में 4 रुपए फी यूनिट का इजाफा कर दिया गया। इजाफे से बिजली सार्फिन पर एक माह के लिए 51 अरब से जायद का बोझ पड़ेगा। आम पेट्रोल पंप के धमाके के बाद संभले भी ना सके, सरकार ने बिजली गिरा दी। बिजली की कीमत में 3 रुपए 99 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी। चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी की सदारत में सेंट्रल परचेजिंग पावर अथॉरिटी की दरखास्त पर माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के लिए बिजली की कीमतों में इजाफे की दरखास्त की समाअत हुई। हुकाम ने बताया कि अप्रैल में गैस से 7.82 और LNG से 10.78% कम बिजली पैदा की गई। इस कमी को पूरा करने के लिए फर्नेस ऑयल इस्तेमाल किया गया। हुकाम के मुताबिक आलमी मार्केट में कोयले और फर्नेस ऑयल की कीमत में इजाफा हुआ है। एंग्रो पावर का एक पावर प्लांट बैल टूटने के बाद अब तक बहाल नहीं हो सका। मेंबर नेपरा सिंध रफीक शेख ने कहा कि 33 गैस पावर प्लांट्स मेरिट ऑर्डर में सर फहरिस्त हैं। 2-2.5 साल से गैस नहीं मिल रही, तो ये सर फहरिस्त क्यों हैं? जिस पर अथॉरिटी ने मुतल्लिका हकाम को मेरिट ऑर्डर की लिस्ट दुरुस्त करने की हदायत कर दी, जिसके बाद समाअत मुकम्मल कर ली गई। नेपरा हुकाम के मुताबिक बिजली की कीमतों में एक माह के लिए 3 रुपए 99 पैसे का इजाफा बनता है। नेपरा फैसले के बाद सार्फिन पर एक माह के लिए 51 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा।
हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 179 रुपये 86 पैसे बरकरार। लाइट डीजल ऑयल की कीमत 148 रुपये 31 पैसे बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत 155 रुपये 56 पैसे ही रहेगी। हाई स्पीड डीजल की कीमत 174 रुपये 15 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने जून के लिए एलपीजी की कीमत में कमी का ऐलान कर दिया। नई कीमतों का इतलाक 1 जून से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की कीमत में 13 रुपये 9 पैसे फी किलोग्राम कमी की गई है, जिसके बाद 1 किलोग्राम की नई कीमत 218 रुपये 75 पैसे हो गई है। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 154 रुपये 48 पैसे सस्ता हो गया, जिसके बाद नई कीमत 2581 रुपये 35 पैसे मुकर्रर की गई है। मई में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2735 रुपये 83 पैसे का था। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा है कि पहले हम मईशत को मुस्तहकम करेंगे, फिर इंतखाबात की तरफ जाएंगे। जून के अवाइल में जो बजट देंगे, इसके नतीजे में IMF से मुआहदे की उम्मीद है। रूस ने तेल और गंदम पर 30% रियायत की कोई पेशकश नहीं की थी। खजाना मिफ्ता इस्माइल ने गैर मुल्की टीवी को इंटरव्यू में कहा, IMF की नजरें हमारे बजट पे हैं। IMF चाहता है कि हम पेट्रोल, डीजल और बिजली पे साबिक हुकूमत की जानिब से दी गई सब्सिडीज खत्म कर दें। हमारे बजट में सब्सिडीज वापस लेने और टैक्सों में इजाफे के इकदामात होंगे। इसलिए बजट के बाद IMF से मुआहदे का इम्कान है। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इमरान खान ने हमें फंसाने के लिए सब्सिडीज का ऐलान किया था। नून लीग का ख्याल था कि हमें फौरी इलेक्शन कराना चाहिए, लेकिन IMF प्रोग्राम में तोसी के लिए इंतखाबात न करवाने का फैसला करना पड़ा। हम पहले मईशत मुस्तहकम करेंगे, फिर इलेक्शन की तरफ जाएंगे। रूस की जानिब से तेल और गंदम पे 30% रियायत की पेशकश के हवाले से वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, रूस ने तेल और गंदम पे 30% रियायत की कोई पेशकश नहीं की थी। गुज़िश्ता हुकूमत ने तेल के लिए रूस से राबिता किया था। पाबंदियां आयद होने के बाद रूस ने कोई जवाब नहीं दिया। मिफ्ता इस्माइल ने बताया कि हमने गंदम के लिए यूक्रेन और रूस से राबिता किया है। दोनों मुल्कों में से जो भी हमें गंदम फराहम करेगा हम खरीदेंगे। बिजली का शॉर्टफॉल क्यों? कितने बिजली घर बंद हैं? न्यूज़ वन के बिजली शॉर्टफॉल की तफसीलात हासिल कर ली। दस्तावेज़ात के मुताबिक 5705 मेगावाट सलाहियत के पावर प्लांट्स ताहाल ख़राब हैं। 12 बिजली घर 4% से 50% बिजली पैदा कर रहे हैं। राहिल हसन की रिपोर्ट। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल बदस्तूर जारी। कौन कौन से बिजली घर फनी खराबी और ईंधन की फराहमी के बायस बंद हैं? तफसीलात न्यूज़ वन ने हासिल कर ली। तफसीलात के मुताबिक 5705 मेगावाट सलाहियत के पावर प्लांट्स ताहाल खराब। 12 बिजली घर 4% से 50% तक बिजली पैदा कर रहे हैं। 747 मेगावाट का गुद्दू पावर प्लांट टरबाइन की खराबी। 1247 मेगावाट का कोल पावर प्लांट बॉयलर ट्यूब लीकेज के बायस बंद है। इसी तरह 520 मेगावाट का गुद्दू TPS, 129 मेगावाट सलाहियत के HCPC, 649 मेगावाट का TPS जामशोरो और 1208 मेगावाट हबको पावर प्लांट फनी खराबी के बायस बंद हैं। दस्तावेजात के मुताबिक 1085 मेगावाट मुजफ्फरगढ़ बिजली घर ईंधन की कमी के बायस बंद है। साहिवाल कोल पावर प्लांट के पास कोयले का जखीरा और 1087 मेगावाट कैप्को पावर प्लांट के पास फर्नस ऑयल का जखीरा खत्म होने के करीब है। मुतअद्दिद पावर प्लांट्स को अदम अदायगी के बायस भी ईंधन की सप्लाई बंद है। खराब पावर प्लांट्स की खराबियां 1 माह गुजरने के बावजूद ताहाल दूर न की जा सकी। जराये के मुताबिक ईंधन की अदायगियां IMF के कर्ज से मशरूत हैं। मुज़ाकरात कामयाब न हुए तो बिजली के शॉर्टफॉल में मजीद इजाफे का खदशा है। वफाकी काबीना ने इमरान खान के अपने कारकुनों के मुसल्लह होने और वज़ीर आला KP के वफाक पर हमले से मुतल्लिक़ बयानात का नोटिस लेते हुए 6 रुकनी कमेटी कायम कर दी। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि कारकुनों के मुसल्लह होने के एतराफ़ के बाद किसी सबूत की ज़रूरत नहीं। इमरान खान 200% गोली चलाने के इरादे से आए थे। PTI वालों पर मुकदमा दर्ज और सरगना को गिरफ्तार होना चाहिए। सरदार हमीद की रिपोर्ट। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसमें अहम फैसले किए गए। इजलास के बाद मीडिया ब्रीफिंग में वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PTI के लॉन्ग मार्च को रियासत मुखालिफ साजिश करार दिया। बोले, इमरान खान के कारकुनों के मुसल्लह होने के इतराफ के बाद किसी सबूत की जरूरत नहीं। इमरान खान साहब के इस बयान के बाद
کہ ہمارے ساتھ لوگ مسلح تھے. اب اس کے بعد کوئی ہماری کسی رپورٹ کی، ہماری کسی ایویڈنس کی کوئی جو ہے وہ ضرورت رہ نہیں جاتی. رانا ثناء اللہ نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کے ساتھ سوابی سے مسلح لوگ آئے تھے. یہ لوگ گولی چلانے کے ارادے سے آئے تھے. یہ فتنہ فساد مارچ تھا. کابینہ میں تجویز رکھی ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے اور انہیں قرار واقعی سزا دی جائے. اسلام آباد کی حدود پر بھی جب ان کو روکا گیا تو انہوں نے پولیس پر فائرنگ کی اور وہاں پہ انہوں نے مسلح انداز سے جو ہے پولیس کے لوگوں کو یرغمال بھی بنایا. قمر زمان قاہرہ اور مولانا اسد محمود نے پی ٹی آئی کے لانگ مارچ کو فتنہ فساد مارچ کا نام دے دیا. کہا نیب قانون اور الیکشن ایکٹ میں ترمیم ملک کی بہتری میں کی گئی. نیب سے غیر قانونی شکوں کو ختم کیا گیا. عمران خان کا یہ احتجاج جو خود تسلیم کرتا ہے کہ وہ مسلح بھی تھا اور آج پیشگی اس کا وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمران خان مجھے کہے گا تو میں فورس استعمال کروں گا. ہماری جماعتوں نے مشترکہ طور پہ کہا تھا کہ جس دن ہمیں یہ موقع ملا ہم ان قوانین کو ختم کر دیں گے کیونکہ یہ قانون ملک کے مفاد کے منافی ہے. اس سے قبل کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم نے عمران خان اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیانات پر کمیٹی تشکیل دے دی. کمیٹی کی سربراہی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کریں گے. کمیٹی میں سردار ایاز صادق، قمر زمان قاہرہ، اسد محمود اور وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ شامل ہوں گے. کمیٹی بیانات کا جائزہ لے کر آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کرے گی. سردار حمید، نیوز 1، اسلام آباد. تحریک انصاف کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی گفتگو کو بانی متحدہ سے مماثل قرار دے دیا. سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ دھمکیاں میں سائفر پر کمیشن کیوں نہیں بنا رہی. کہتے ہیں قومی اسمبلی میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں. لانگ مارچ کے حوالے سے کل سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کریں گے. کاشف رفیق کی رپورٹ. پی ٹی آئی رہنماؤں فواد چودھری اور حماد اظہر کی پریس کانفرنس. فواد چودھری نے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ پر جم کر تنقید کی. بولے رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس کو اگر آنکھیں بند کر کے سنیں تو لگے گا کہ بانی ایم کیو ایم بول رہے ہیں. آنکھیں بند کر کے اگر رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس سنیں تو آپ کو لگے گا الطاف حسین بول رہے ہیں. ایگزیکٹلی جس طرح عمران فاروق جب وہاں پہ مرڈر ہوئے لنڈن میں، اس کے بعد کی آپ کو پریس کانفرنس یاد ہوگی الطاف حسین کی کہ وہ کس طرح رو پیٹ رہے تھے کہ عمران فاروق اللہ مر گئے، یہ ہو گیا، میں تو لٹ گیا، مر گیا، برباد ہو گیا. سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے اعلان کیا کہ بدھ کو سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کی جائے گی. سوال اٹھایا کہ سپریم کورٹ دھمکی امیز سائفر پر کمیشن کیوں نہیں بنا رہی. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو صدر مملکت عارف الوی نے خط بھی لکھا ہے. میں چیف جسٹس صاحب سے صرف یہ جاننا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کیا وجوہات ہے کہ آپ اس خط کی، سائفر کی، صدر پاکستان کے کہنے پہ بھی کمیشن بنانے کو تیار نہیں ہے. ہمیں وجوہات بتا دیں، ہو سکتا ہے ہم آپ کی وجوہات سے سیٹسفائی ہو جائے. پی ٹی آئی رہنماؤں نے شفاف انتخابات کی راہ میں موجود چیف الیکشن کمشنر کو رکاوٹ قرار دے دیا. اس وقت پاکستان میں اگر الیکشنز کے، انتخابات کے شفاف انعقاد میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو وہ سب سے بڑی رکاوٹ موجودہ چیف الیکشن کمشنر اور یہ ایک جعلی الیکشن کمیشن جو بنا ہے ایک لوٹا ایسوسی ایشن کے ذریعے، وہ ہے. ان کا کہنا تھا کہ حکومت تماش بینوں کے حوالے کر دی گئی ہے. 40 روزہ اقتدار میں دوروں پر کروڑوں روپے خرچ کر دیے گئے ہیں. عمران خان نے عدم اعتماد کے دوران آصف زرداری سے رابطوں کی تردید کر دی. اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ آنے کا بھی انکشاف کر دیا. پشاور میں ڈیجیٹل میڈیا کے نمائندوں سے ملاقات میں عمران خان نے کہا کہ اسمبلی میں واپس جانے کا مطلب امپورٹڈ حکومت کو تسلیم کرنا ہے. اب کسی رکن کو انفرادی طور پر اسمبلی جانے کی ضرورت نہیں. عمران خان نے انکشاف کیا کہ جب حکومت میں تھے تو اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے دباؤ تھا اور پیغام بھیجا گیا کہ اپنے ملک کا سوچیں. پیغام کس کی طرف سے آیا تھا یہ ابھی نہیں بتا سکتا. امریکہ کے زیر اثر مخصوص لابی مسلم ممالک سے اسرائیل کو تسلیم کروانا چاہتی ہے. عمران خان کو پتا ہے کہ اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس کی سازش ناکام ہو جائے گی. نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز کی کڑی تنقید. کہا پی ٹی آئی کا جہاد نہیں فساد ہے، اس فساد کو روکنا عین جہاد ہے. عمران خان نے اعتراف جرم کر لیا کہ ان کے لوگوں کے پاس ہتھیار تھے. اتنی بے حس حکومت تھی کہ 4 سال انہوں نے سوائے انتقام کے کچھ بھی نہیں کیا. اس کو پتا ہے کہ اگر اکتوبر نومبر گزر گیا تو اس نے جو سازش رچائی ہے نا وہ ناکام ہو جائے گی.
इससे बड़ी पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कभी किसी ने नहीं की जो इमरान खान करके गया। IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रख के चला गया। जगह जगह लैंड माइन्स बिछा गया है, कड़वा खून भरना पड़ रहा है शहबाज शरीफ साहब को। एक मुल्क में जाता था तो दूसरे मुल्क की चुगली और बुराई करता था। सऊदी अरब जैसे देरीना दोस्तों के बारे में जो बदकलामी की, ये जहाद नहीं है, ये फसाद है और इस फसाद को रोकना ऐन जहाद है। बेतराफे जुर्म इसने कर लिया कि मेरे लोग मुसल्ला थे। उधर वफाकी वज़ीर शाह मरी का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के साथ रिलीफ पैकेज भी बनाया है जो 1 करोड़ 40 लाख खानदानों को दिया जाएगा। 38% आबादी इस पैकेज में कवर होगी। उन्होंने इमरान खान और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के बयानात को एतराफ़े जुर्म करार दिया। आज की हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा किया है तो साथ ही साथ उन्होंने एक रिलीफ पैकेज जो है उसका भी प्लान बना लिया है और वो 28 बिलियन की रकम है जो कि एडिशनल रिलीफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर यानी गरीब तरीन जो घराने हैं उनको दी जाएगी। 1 करोड़ 40 लाख खानदान कवर होंगे। आप एक सूबे के रिसोर्सेस को वफाक के ऊपर हमले के लिए इस्तेमाल करें। ये तो एक चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने पहले बतौर मेंबर सूबाई असेंबली ओथ उठाया है और फिर बतौर चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा ओथ उठाया है। अगर ये शख्स मुल्क के वजीर आजम के लिए इतनी घटिया बात करे और घटिया जबान इस्तेमाल करे तो ये तो आइन की भी खिलाफ वर्जी है। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने लॉन्ग मार्च के शुरा पर ताकत के बेजाय इस्तेमाल का नोटिस ले लिया। चेयरमैन कमेटी मोहसिन अजीज की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब पुलिस के अफसरान और चीफ कमिश्नर शरीक हुए। सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि 80 की दिहाई में पीपल्स पार्टी के कारकुनान को जो कोड़े लगे थे, लॉन्ग मार्च पर तशद्दुद ने इसका रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। ज़ियाउल हक दौर में भी आज के जुल्म के आगे कुछ नहीं। एहतजाज करने वालों पर पुलिस तशद्दुद देखकर लगता है कि हिटलर का जमाना वापस आ गया। सेनेटर सैफुल आबरू ने उमर अयूब की तशद्दुद ज़दा तस्वीर देखकर कहा कि यह तशद्दुद है या पेंटिंग की है। सेनेटर एजाज चौधरी ने कहा कि स्पेशल ब्रांच और मुकामी पुलिस घर में घुस गई थी। सेनेटर शिबली फराज ने मौला बख्श चांडियों को ज़िया दौर में मार पड़ने पर तंज किया जिस पर दोनों अरकान में तल्ख कलामी हो गई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि हकीकत यह है कि तीनों बड़ी जमातें मुल्की मसाइल हल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी हैं। सब आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं। एक बयान में सिराजुल हक ने कहा कि इलेक्शन से कबल और बाद में आवाम को बेवकूफ़ बनाना तीनों बड़ी सियासी जमातों का वतीरा है। कौम हुक्मरानों के बयानिए में तब्दीली का दिलचस्प खेल देख रही है। कल जो बयानिया मुस्लिम लीग नून का था, आज वो बातें PTI के चेयरमैन कर रहे हैं। 4 बरस में 5 वज़राए खजाना बदले लेकिन मईशत में कोई बेहतरी नहीं आई। दूसरी जानिब MQM पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि माजी में हमसे 14 सीटें छीनी गई थी। इस मरतबा होने वाला इलेक्शन लोगों के अरमानों पर पानी फिर देगा। वज़ीर आला अंदरूनी सिंध का होगा तो गवर्नर शहरी सिंध का होगा। MQM ने मनफी सियासत को हमेशा मुस्तरद किया। हमने किसी दौर में बोरीबंद लाशें नहीं फेंकी बल्कि MQM के कारकुनान की बोरीबंद लाशें मिली हैं। जाली इलेक्शन के जरिए 14 सीटों के बावजूद जो हमसे छीनी गई, इस दफा का ये इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला ऐसी साजिशों, ख्वाब और उम्मीदों पे मुकम्मल पानी फेर देगा। अनरिटन एक मुआहदा है कि अगर वजीर आला अंदरूनी सिंध का होगा तो शहरी सिंध का गवर्नर होगा। उसका हम इंतजार कर रहे हैं। MQM ने ना बोरी बंदाशें, हाँ MQM के कारकुनान की बोरी बंदाशें मिली है शहर को। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने रात गए जिला जुनूबी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। लेडी डिफरेंट और सिविल अस्पताल से मुत्तसिल रोड की कारपेटिंग के काम का जायजा भी लिया। इलाका मकीनों ने एडमिनिस्ट्रेटर बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब से तशक्कुर का इजहार किया। इस इलाके का देखना मसला था। पहले फेज में यहाँ की सेवरेज को, ड्रेनेज को क्लियर किया गया और आज ये रोड कारपेटिंग का काम माशाल्लाह ये चल रहा है। एक लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड थी यहाँ के लोकल मकीनों की, जिसको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आवाम के बेहतरीन मफाद में अल्हम्दुलिल्लाह हल किए। और इसी तरीके से हमारे ओल्ड सिटी एरिया के मुख्तलिफ मकामात पर इसी तरीके से
जो डेवलपमेंट का काम होने की ज़रूरत है, उस काम को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला कोसा है। वक्त हो गया एक ब्रेक का, लेकिन उससे पहले न्यूज़ अप। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कराची में CTD गार्डन ने औरंगी टाउन सेक्टर 11 में छापा मारा, जिसके दौरान कलअदम तंजीम के कारिंदे को गिरफ्तार कर लिया गया। CTD के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम दहशतगर्द तंजीमों के लिए फंडिंग में मुलविस है, जिसके कब्जे से कलअदम तंजीम का कार्ड और रसीद बुक बरामद हुई है। मुलजिम से उसके साथियों के बारे में पूछताछ जारी है। उधर अल्लावाली नदी के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। पुलिस ने फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब सदर के इलाके में वाक़या एक फ्लैट पर पुलिस छापे के दौरान गिरफ्तारी के खौफ से मुलजिम ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी और दम तोड़ गया। पुलिस का कहना है मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए बोर्ड बेसन पर भी छापा मारा गया था। मुलजिम 40 साल उस्मान रऊफ पर 16 लाख रुपए के चेक बाउंस होने का इल्जाम था। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का कानून मंजूर कर लिया गया। ज़्यादती पर सज़ाए मौत, उम्र कैद और 50 लाख तक जुर्माना होगा। नए कानून के मुताबिक ज़्यादती की वीडियो बनाने पर 20 साल कैद और 70 लाख रुपए जुर्माना होगा। वीडियो शेयर करने पर 10 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माना होगा। DNA रिपोर्ट और वीडियो को सबूत तस्लीम किया जाएगा। IG रेलवे फैसल शाकिर कहते हैं कि निजी शोबे में चलने वाली ज़िक्रिया एक्सप्रेस के अफसोसनाक वाक़े के 3 मुलजिमान गिरफ्तार किए जा चुके हैं। इस वाक़े के बाद अब तमाम ट्रेनों में कैमरे नस्ब करने का फैसला किया गया है। मुल्तान की अदालत ने मरकजी मुलजिम जाहिद को 2 रोज़ा सफरी रिमांड पर रेलवे पुलिस के हवाले किया। और में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए IG रेलवे फैसल शहकार का कहना था कि जिक्रिया एक्सप्रेस में खातून के साथ पेश आने वाले अफसोसनाक वाकया की FIR भी रेलवे पुलिस ने आज खुद नोटिस लेते हुए दर्ज की थी, जबकि जाहिद समेत 3 मुलजमान को चंद घंटों में जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक हेल्प डेस्क पुलिस का होता है जिसमें लेडीज भी होती है। उन्होंने थोड़ा सा उसको आइडेंटिफाई किया, उनको शक पड़ा, वहाँ पे लेकर गए तो अब वहाँ फिर आस्ता आस्ता बात पता चली। तो मेरे नोटिस में आया, मैंने कहा कि फौरी आप इसकी FIR दर्ज करें, हम तफ्तीश करेंगे। FIR दर्ज हो गई और मेडिकल फिर हमने इमीडिएटली, चूँकि बड़ा अहम था, वो करवा लिया। हमने उनके टेलीफोन ट्रैकिंग मुख्तलिफ़ चीज़ें यूज़ करने के बाद अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी कि वो तीनों के तीनों जो हैं वो पकड़े गए हैं। उधर जेलों में सौतेले बेटे ने घरेलू झगड़े पर वालदा और 2 बहनों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक तहरे कत्ल का वाकया चौटाला के नवाही इलाके मलिकपुर में हुआ। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार हो गया। लाशों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुल्तान में MDA ता रजाबाद रोड सीवरेज पाइपलाइन तोड़ने के बाद से अब तक नहीं बनाई जा सकी है, जिसकी वजह से शहरियों को सख्त मुश्किलात दरपेश हैं। कारोबार मुतासिर है और ट्रैफिक की रवानी भी सुस्त रवि का शिकार है। सड़क पर गड़े किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकते हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे हैदराबाद से। हैदराबाद बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर की मुख्तलिफ सड़कें जो हैं वो सीवरेज पाइपलाइन डालने के बाद से अब तक नहीं बनाई जा सकी हैं, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त MDA रोड पर मौजूद हूँ। मेरे अकब में भी आप इस वक्त देख सकते हैं कि ये रोड जो है यहाँ पर सीवरेज पाइपलाइन तोड़ने का काम तकरीबन अरसा 8-9 माह कबल शुरू किया गया था। पाइपलाइन तोड़ दी गई, लेकिन उसके बावजूद जो है सड़क पर अभी तक गड्ढे पड़े हुए हैं और ये गड्ढे जो हैं किसी वक्त भी किसी हादसे का सबब बन सकते हैं, क्योंकि ये मेन रोड है। 3-4 इलाके मेन ऐसे हैं जो कि इस रोड से मिलते हैं। MDA चौक है, इसके साथ रजाबाद चौक है और उसके आगे सूरज मियानी चौक है और यहाँ से पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को भी यही रोड जाता है, निश्तर को भी यही रोड जाता है, जिसकी वजह से जो है शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। सारा दिन यहाँ पर जो है ट्रैफिक का काफ़ी रश होता है, लेकिन जब से ये गड्ढे पड़े हैं तब से जो है ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है और ख़ास तौर पर इस इलाके के जो रिहायशी और दुकानदार जो हैं उनका यही कहना है कि सारा दिन इन गड्ढों की वजह से मट्टी गर्दो गुबार से उनमें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां भी फैलने शुरू हो चुकी है। यहाँ पर शहरियों ने बहुत शुक्रिया हैदराबाद तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। कोटा 1,80,000 से कम करके 81,210 कर दिया गया है। हुकूमत ने हज पैकेज का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में हज इखराजात के हवाले से न्यूज ब्रीफिंग देते हुए वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर मुफ्ती अब्दुल शकूर ने कहा कि इस साल कोरोना वायरस की वजह से पाकिस्तान का कोटा
1,80,000 जायरीन से कम करके 81,210 जायरीन तक कर दिया गया है। शुमाली पाकिस्तान रीजन के लिए 8,51,000 रुपए और जनूबी पाकिस्तान रीजन के लिए 8,60,000 रुपए अखराजात आएंगे। उन्होंने कहा कि महंगा हज पैकेज हमें वर्षे में मिला है। हमने पैकेज का ऐलान किया था, वो हमें वर्षे में मिला था। मैंने आपको पहले भी ये बात की थी कि हज बहुत महंगा कर दिया गया था, साफ बात है। और पहले ये कि हमारे अपने रुपये की पोजीशन क्या है डॉलर के मुकाबले में, रियाल के मुकाबले में। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर ने छुट्टी के रोज दरखास्तें जमा कराने वाले आजमीन का डाटा वजारत तक न पहुँचने के सवाल पर कहा कि ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम इसका जिम्मेदार है। हमारी तरफ से, वजारत की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक कोई गलती नहीं हुई है। हाँ, हो सकता है कि ऑनलाइन सिस्टम में कभी कभी गलती हो सकती है, तो वो बैंकों के पास चंद सौ के हवाले से बैंकों का कोई जो है सिस्टम में गलती आई होगी। मुफ्ती अब्दुल शकूर का कहना था कि 2012 के बाद पहली बार पाकिस्तानी जायरीन के लिए हरम से इस कदर करीब रहाइश की जगह दी गई है। खेल के मैदान से बताएं, पाकिस्तान और श्रीलंकन विमेंस टीमों के दरमियान 3 वनडे मैचेस की सीरीज श्रीलंका की टॉस जीतकर बैटिंग जारी गुज़िश्ता रोज ट्रॉफी की रुनुमाई कर दी गई। पाक श्रीलंकन खवातीन क्रिकेट टीम के दरमियान वनडे टाकरा, क्रिकेटर्स ने तैयारियों को फाइनल टच दे दिया, खामियों को दूर किया, जमकर प्रैक्टिस की, फील्डिंग के साथ नेट पर बैटिंग और बॉलिंग की तगड़ी तैयारी की। कौमी कप्तान बिस्मा मारूफ ने कहा कि कोशिश है कि सीरीज जीतकर आईसीसी चैंपियनशिप के पॉइंट्स हासिल करें। हाँ, जिस तरीके से T20 सीरीज़ को हमने फिनिश किया, डेफिनेटली कॉन्फिडेंस वो कैरी करने की कोशिश करेंगे। ये मैचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज चैम्पियनशिप पॉइंट्स है हम लोग के लिए, तो फुली फोकस्ड है और कोशिश करेंगे कि ये पॉइंट्स हम लोग हासिल करें और ये सीरीज़ भी जीतें। श्रीलंकन कप्तान चमारी का कहना था कि T20 में शिकस्त के बावजूद मायूस नहीं हैं, वनडे में कमबैक करेंगे। Lost 3 games. Yeah, this is a new format, fresh tournament. So we execute our plan in this format. Especially this format is really good for us because we have the 3 games are very important for us because we need some points in the ICC Champions points table. दोनों टीमों के दरमियान इससे कबल 30 वनडे मैचेस खेले गए। 21 फतूहात मेहमान टीम ने हासिल की, सिर्फ 9 में पाकिस्तान कामयाब रहा। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट news1.